پہلے ACP صاحب اپنی بات کو رکھیں. ہم آل انڈیا سنی بورڈ کے صدر محترم جناب مولانا مشتاق صاحب سے درخواست کریں گے کہ اس سلسلے میں چند ہدایات فرمائیں. مولانا مشتاق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آپ حضرات سے ایک درخواست کروں گا کہ یہ جو مہاماری چل رہی ہے، یہ کورونا وائرس چل رہا ہے، پہلے دن سے لے کر آج تک اور آج کے بعد سے جب تک جتنے دن ضرورت پڑے گی، ہمارے پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے تمام احباب نے جس طریقے سے اس میں کام کیا ہے اور جس طریقے سے ہماری حفاظت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں جس طریقے سے لگے ہوئے ہیں، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ مرض لگ سکتا ہے، اور کتنے ہمارے ڈاکٹرز چلے گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن پھر بھی وہ یہ سب کچھ سن کر بھی اور جان کر بھی ہماری جانوں کی حفاظت کے لیے، ہمارے علاج کے لیے، ہماری ضرورت کے لیے 24 گھنٹے کھڑے ہوئے ہیں. تو کم سے کم آج کی اس میٹنگ میں ہم اپنے تمام آفیسران اور ان ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے تمام احباب کے لیے کم سے کم تالی بجا کر ان کا استقبال کریں. اور دوسرے یہ ہے کہ یہاں پر ہم سب جمع ہیں. ایک بات یاد آ گئی ہے تو بتانا ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے اجازت لی کہ آپ سے ملاقات کرنا ہے، آپ سے بات کرنا ہے. اجازت ہو گئی، لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اسے ایک ایسا مرض ہے جو کسی کو بھی دوسرے کو لاحق ہو سکتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رہنما اور نمونہ ہے. چنانچہ وہ جب شخص آ رہا تھا تو آپ نے اس کے پاس اطلاع بھیجی کہ اس سے کہہ دو کہ ہم نے تمہاری بیعت کو قبول کیا ہے اور تم یہاں نہیں آنا. آپ نے اس کو منع کر دیا آنے سے، ملنے سے، ملاقات کرنے سے. گویا کہ پتہ یہ چلا کہ ہم کو یہ پیغام ملا ہے کہ جہاں ایک طرف اگر کوئی ہمارا بھائی ہم کو ملتا ہے، اور حدیث کے حوالے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب وہ آپس میں خوش مزاجی کے ساتھ مسکرا کر ملتا ہے اور سلام کرتا ہے تو اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں. اسی کے ساتھ جب ہاتھ بڑھا کر ہاتھ ملاتا ہے اور دعا پڑھتا ہے تو ہاتھ الگ ہونے سے پہلے اللہ دونوں کو معاف کر دیتے ہیں، دونوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. وہیں یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ جہاں ہاتھ ملانے پر اتنا اجر و ثواب ہے اور ہاتھ ملانا سنت ہے، وہیں یہ بھی ہم کو پتہ چلا کہ جب ضرورت پڑ جائے تو ہاتھ نہ ملانا بھی سنت ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس وقت اس آپدہ اور اس آفت میں آپس میں ملاقات ہوگی، سلام دعا ہوگا، لیکن دور سے ہوگا. ہاتھ ملانا نہ ملانا اس وقت سنت ہے. اس سنت پر بھی ہم نے عمل کیا ہے، اس سنت پر بھی آپ عمل کریے، انشاءاللہ آپ کو پورا ثواب ملے. ایسے ہی ایسے مواقع آئے، آپ نے اس کو اپنے گھر پر رہنے کو کہہ دیا، تم اپنے گھر پر رہو، باہر نہیں نکلو. تو گویا کہ پتہ یہ چلا کہ جب کوئی آپدہ، کوئی مصیبت آئے تو اس آپدہ اور مصیبت کو لینے کے لیے باہر نہ نکلو، گھر پہ رہو. گھر پہ رہو گے تو محفوظ رہو گے، گھر پہ رہو گے تو بچے رہو گے. یاد رکھیے جان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. آج رمضان جیسے مقدس مہینوں میں آج ہم سے فرض نمازیں اور جمعہ کی دن بھی ہم کو ہمارے گھروں میں نمازیں ادا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جان سے بڑھ کر کچھ نہیں. جان ہے تو سب کچھ ہے،
अगर हम सेहतमंद हैं तो इबादत कर सकते हैं, अगर हम सेहतमंद हैं तो रोजा रख सकते हैं, अगर हम सेहतमंद हैं तो हम दूसरे की इयादत के लिए भी जा सकते हैं। अगर हमारी सेहत चली गई तो नमाज में खड़े होने के लायक न रहेंगे, अगर हमारी सेहत चली गई तो हम रोजा रखने के लिए भी न रहेंगे। इसलिए सेहत की हिफाजत करना भी हम पर फर्ज है। लिहाजा आज इस फर्ज को अदा करने के लिए हमसे कहा जा रहा है। नमाज भी फर्ज है, मस्जिद में नहीं घर पे अदा कर रहे हैं, लेकिन सेहत की हिफाजत करना भी हमारे लिए फर्ज है जो घर में हमारे हो सकती है। लिहाजा हमसे कहा गया बिला जरूरत न निकलिए, तो ऐसे ही बिला जरूरत। लेकिन हाँ, हम अपने उन भाइयों से भी कहना चाहते हैं कि जो जरूरत पर निकले तो हैं, लेकिन सोचा ही होता है कि चलो निकले हैं तो थोड़ी देर इधर खड़े हो जाए, थोड़ी देर उधर खड़े हो जाए। नहीं, जरूरत पर निकले हैं तो जरूरत पूरी करके फौरन वापस हो जाइए। बाजार में गए हैं, आपके लिए बाजारों की दुकानें खुलवा रखी गई है, लेकिन नहीं, दुकानों पर भी हमें ख्याल करना है, दूरी बनाकर रखना है, और उसी के साथ जहां भीड़ हो थोड़ा खड़े रहिए, इंतजार कर लीजिए, भीड़ में ना जाइए। क्यों, पता नहीं कहां से कैसे ये आ जाए और आने के बाद क्या मुसीबत आती है। सच बता रहा हूं, वो लोग जो इस वक्त हॉट स्पॉट एरियो में रह रहे हैं, उनके जो फोन आ रहे हैं, कभी कभी इतनी परेशानी, ऐसा एहसास होता है कि बताइए कि एक शख्स को हुआ है, आज सैकड़ों लोग उसमें फंसे हुए हैं जो घर से बाहर नहीं निकल सकते। लिहाजा आज ये मौका रमजान का चल रहा है, दुआओं का मौका है, दुआ की कबूलियत का मौका है। दुआ करिए, इबादत करिए, और जो हिदायतें हमारे बड़ों की तरफ से दी गई हैं, खास तौर पर हमारे उलमा कराम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, मौलाना राबे हसनी नदवी, और इसी तरीके से मौलाना अरशद मदनी साहब, दीगर हमारे तमाम उलमा कराम ने हमें जो हिदायतें दी हैं उन हिदायतों को मानिए। हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो हमारे सामने जो ज़ाब्ते बयान किए हैं उसको सामने रखकर उसी के एतबार से आप रहेंगे, महफूज रहेंगे, सेहत के साथ रहेंगे। और ये तमाम ऑफिसरान आपको सेहतमंद रखने के लिए आपसे मना करते हैं, आपको कहते हैं कि आप घर के अंदर जाइए, यहाँ क्यों खड़े हैं, आपसे मोहब्बत में कहते हैं, आपसे दुश्मनी में नहीं कहते हैं। आपसे इनकी कोई दुश्मनी नहीं है, ये तो बड़ा काम ये कर रहे हैं कि ऐसे में भी ये बाहर रहकर और आपको अंदर रखने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मालूम है कि बाहर जो रहेगा उस पर कुछ हो सकता है। लेकिन इन्होंने आपकी जान की हिफाजत के लिए ये कदम उठाया है कि हमको तो जब दूसरों की याद आ गया। तो आपको बताकर बस मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि एक अल्लाह वाले से कहा गया कि देखो, सुबह के वक्त आज सब लोग आ जाना मस्जिद, और आज जो आ जाएगा सबकी दुआएं कबूल हो जाएंगी, सबकी मगफरत हो जाएगी, लेकिन किसी से तुम बताना नहीं। उनके उस्ताद ने कहा। अब वो परेशान क्या करें, तो उन्होंने जाके कहा, लेकिन रात में जाके कुंजी बजा कर कह दिया कि उस्ताद मोहतरम ने कहा सब लोग आज सुबह आ जाना, सबकी आज मगफरत होगी, सबके लिए दुआएं की जाएंगी। सुबह पूरी मस्जिद भरी हुई। उस्ताद समझ गए कि शागिर्द ने जाकर सबको कहा है, और उस्ताद शागिर्द का इम्तिहान ले रहे थे। बहरहाल सुबह सब उस्ताद ने शागिर्द को बुलाया, कहा तुमने सबसे कह दिया, जबकि हमने तुमसे कहा था कहना नहीं किसी से, वरना तुम फंस जाओगे। तो उसने कहा कि उस्ताद मोहतरम, बात ये नहीं, मेरी अकेले की नहीं है, बात यह है कि जब इतने लोगों की दुआ कबूल के लिए दुआ आप करेंगे, दुआ कबूल होगी, उनकी मगफरत होगी, तो मैंने ये सोचा जब सबकी मगफरत हो जाएगी और मेरे बताने की वजह से मुझसे कहा जाएगा तुम जहन्नम की तरफ जाओ, तो जब मैं जहन्नम की तरफ भेजा जा रहा होगा, ये सब के सब कहेंगे कि अल्लाह इसी की वजह से तो हमको जन्नत मिल रही है और आप इसको जहन्नम में भेज रहे हैं। इतने लोगों की सिफारिश जब होगी तो अल्लाह सिफारिश को कबूल करके हमको भी जन्नत में दाखिल फरमा देगा। तो ये हमारे अहबाब जो हमारे लिए लगे हुए हैं, ये इसलिए लगे हैं, ये बचेंगे, घरों में हमारे लिए दुआएं करेंगे तो ऊपर वाला हमको बचाएगा। इसलिए आज यहाँ पर मीटिंग में जमा हुए हैं। अभी हमारे सामने ऑफिसरान जो हिदायतें देंगे आप उसको पूरे तरीके से मानें। साबुन डाल के दूसरे कपड़े पहने, हाथ को साबुन से धोएं। बेहतर ये कि आप नहा लें, साबुन लगा के नहा लें। उसको जो सामान आप बाहर से ले जाए उसको घर के बाहर किनारे रखें कहीं पे, उसको कम से कम 6 घंटे 7 घंटे के बाद तब इस्तेमाल करें। ये चीज़ें देखिए, बात ये है कि आदमी जब छींकता है तो एक बार छींकने से 1 लाख कीड़े निकलते हैं। और कीड़े का साइज क्या है, आँख के अंदर जो आपके पलक है
पलक का 1000वां हिस्सा छोटा है। आम माइक्रोस्कोप से ये नहीं देखा जा सकता, इसके लिए बहुत बड़ी माइक्रोस्कोप चाहिए होती है जो वायरस को देखती है। तो एक पलक के 1000वां हिस्सा इतना, तो इतनी जल्दी ये मल्टीप्लाई करता है बॉडी में चिपकने के बाद, बॉडी से एनर्जी लेके, कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो एक आदमी को अगर एक आदमी